Hello, bachcho. Good morning to all of you. My dear students, I hope you are all fine at your home. Students, we have new chapter today. Chapter number 3, Social Institution Continuity and Changes. This chapter related to class plus 2 subject Sociology. In this chapter, we will discuss the all types of function which are implemented in the society. See the picture, my dear students. This picture clear all type of society component, all type of society pillars. When all pillars are interrelated with each other, known as a social institutions. Understood? The meaning of this chapter clear in this picture. I hope you have clear this meaning from the pictures. First, government, economy, technology, family, cultures, education, religion, media. All these components, when interrelated with each other, known as a social institution. That's all. Now we will discuss the scientific definition of this chapter. Let us come to the definition now. Firstly, meaning or definition same. A social institution consists of a group of people who have come together for a common purpose. When in our society all people are living with each other, when they are interconnected with each other, some basic common territory. In our Indian society, some institution known as a government behavior, some individuals. All these type of component known as a social institution. That is clear now? Okay students, I hope this meaning clear now. Next let us come to the other component we will discuss now. Now, caste and the caste system. What do you know about caste? Firstly, I would like to clear the meaning of caste. Caste in English word is derived from a Portuguese word casta, meaning pure breed. ये हमारा एक मीनिंग जो पुर्तगीज वर्ड से लिया गया है, जिसका मीनिंग है प्योर ब्रीड. इन इंडियन लैंग्वेज इट इज रेफर टू डिस्टिंक्ट टर्म्स वर्ण एंड जाति. इन एंशिएंट टाइम वी हैव ऑलरेडी इन प्रीवियस क्लासेस कास्ट सिस्टम ऑफ इंडिया. हम इंडिया के कास्ट सिस्टम के बारे में पहले पढ़ चुके हैं. जो हमारा कास्ट सिस्टम था इट इज डिवाइडेड इनटू वर्ण एंड जाति, बिकॉज दैट टाइम आवर कास्ट सिस्टम नोन एज ए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रास. तो उस टाइम हमारा ये कास्ट सिस्टम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के अंदर डिवाइडेड किया हुआ था. तो जो हमारा कास्ट है, कास्ट जो है ये 2 टर्म से बना है, वर्ण एंड जाति. फर्स्टली we will clear the meaning varna and jati. Varna, which literally means color, refer is a fourfold division of a society into hierarchical order. Brahmana, Kshatriya, Vaishya and Shudra is an all Indian aggregative classification. कि जो वर्ण है हमारी, ये उस टाइम की जाति की डिवीज़न है. कि हमारी उस टाइम जो जाति थी या हमारा कास्ट सिस्टम था वो 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड था, जिससे हम क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण के नाम से जानते थे. तो फिर जति नेक्स्ट. फिर तो जति क्या है? जति से रीजनल और लोकल सब क्लासिफिकेशन टर्म्स. पहले तो ब्रॉड मीनिंग तो हमारा जो होता था वो कास्ट का होता था, जिसके अंदर ब्रॉड मीनिंग के अंदर 4 ग्रुप्स आ जाते थे. कास्ट के मेजर 4 ग्रुप जो अभी हमने डिस्कस किए हैं वही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र. ये तो हमारे 4 मेजर ग्रुप्स थे उस टाइम के, जात के या कास्ट के. तो फिर जति क्या थी? जति इज सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द मेजर ग्रुप. जो हमारे उस टाइम के मेजर ग्रुप थे उसमें से जो हमारे सब क्लासिकल कंटेंट थे दैट इज नोन एज ए जाति. व्हाट द वर्ना हैज ए 1000 और 100 सब कॉन्टिनेंट या सब क्लासिफिकेशन टर्म ऑफ जाति. जाति क्या है? ये उस टाइम एंशिएंट टाइम के अंदर 100 और 100 अबब जो सब या सब क्लासिफिकेशन सब पार्ट थे कास्ट के, ये जाति के अंदर डिवाइड थे. जाति क्या थी? एक कम्प्लेक्स या एक कॉम्प्लिकेटेड वर्ड था कि ये अलग अलग कास्ट के अंदर था, और इनका जो एक मेजर पार्ट था वो वर्ण या कास्ट कहलाता था. अंडरस्टूड? जाति इज ए सब क्लासिकल या सब कंपोनेंट. किसके? जाति जो थे ये कंपोनेंट थे किसके थे? वर्ण के, कास्ट के. Understood my dear students?
नेक्स्ट वैदिक एंड पोस्ट वैदिक पीरियड। जो उस टाइम हमारा वैदिक और पोस्ट वैदिक पीरियड था उसके अंदर कैसे था जो हमारा कास्ट सिस्टम था। जो हमारा कास्ट सिस्टम था दैट टाइम वाज वेरी रिजिड, बहुत ही रिजिड था कि उस टाइम के जो लोग थे अपनी कास्ट के अंदर, अपनी कास्ट के फॉलोवर के अंदर बहुत ही रिजिड थे। वो अपनी कास्ट को बहुत मेजर पॉइंट के ऊपर या मेजर व्यू के ऊपर मानते थे। वो अपनी बर्थ से लेकर डेथ तक जिस कास्ट के अंदर होते थे उसी कास्ट के सेरेमनीज रिचुअल्स को अडॉप्ट करते और सेलिब्रेट करते। फिर पोस्ट वैदिक जो हो गया, पोस्ट वैदिक के बाद जो कास्ट सिस्टम था हमारा कुछ रिजिड हुआ और कुछ उसके अंदर और फीचर्स ऐड होते शुरू हो गए। अंडरस्टूड माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, इन पोस्ट वैदिक पीरियड के अंदर जो लोग थे ना वो अपनी कास्ट को वैसे ही अडॉप्ट करते जो उनके उस टाइम के रिचुअल्स होते थे रिलेटेड टू फूड, शेल्टर, ट्रेडिशनली ऑक्यूपेशंस। जो उनकी ऑक्यूपेशन होते थे वो अपनी कास्ट को उसी ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग सेलिब्रेट करते या उसको अडॉप्ट करते। नेक्स्ट वी हैव सम फीचर्स ऑफ कास्ट। ये हमारे फीचर्स हैं कास्ट के, कौन कौन से फीचर्स थे दैट टाइम। कास्ट इज डिटरमाइंड बाय बर्थ। व्हेन एनी न्यू बॉर्न बेबी विच रिलीजन ही हैज़, फिर वो ही अपना रिलीजन टिल द डेथ तक उसको मनाता कि जो बच्चा अभी न्यू बॉर्न होता है उसका जो रिलीजन होता है वो अपने बर्थ से लेके डेथ तक उसी को ही वो अपने कास्ट के अंदर अडॉप्ट करता है। उसके अंदर ये नहीं था कि जो बॉर्न इनटू द कास्ट विद इट्स पेरेंट्स, कास्ट इज नेवर ए मैटर ऑफ चॉइस। उस टाइम तो ऐसा कभी पॉसिबल होता ही नहीं था कि कोई बंदा किसी और कास्ट को अडॉप्ट कर ले, नथिंग। वो अगर ऐसा सोचता ही विल बी पनिश्ड बाय द सोसाइटी मेंबर्स। अगर वो ऐसा सोचता तो सोसाइटी मेंबर के द्वारा उसको पनिश्ड किया जाता। उनको ऐसा सोचने की भी मनाही थी कि अगर वो अपनी कास्ट को किसी और के अंदर डिटरमाइन करे। जिस कास्ट के अंदर वो बच्चा जन्म लेता है उसी कास्ट के अंदर टिल द डेथ तक वो अपने रिचुअल्स को सेलिब्रेट करेगा। मेंबरशिप इन ए कास्ट इन्वॉल्व्स स्ट्रिक्ट रूल्स अबाउट मैरिज। कि जो कास्ट के उस टाइम के रूल्स एंड रेगुलेशन थे, ही और शी विल बी अडॉप्टेड इन द मैरिज ऑक्यूपेशन से मैरिज सेरेमनीज। जो उस टाइम के मैरिज के रीति रिवाज से बहुत रिस्ट्रिक्टेड थे। कास्ट मेंबरशिप आल्सो इन्वॉल्व्स द रूल्स अबाउट फूड एंड फूड शेयरिंग। कि कास्ट मेंबरशिप जो थी आल्सो इन्वॉल्व रूल्स अबाउट फूड एंड फूड शेयरिंग, कि उनको फूड और फूड शेयरिंग के अंदर भी अपने कास्ट सिस्टम को ही अडॉप्ट करना पड़ता था। फिर कास्ट में सिस्टम कंसिस्ट मैनी कास्ट अरेंज्ड इन हायरार्ची ऑफ रैंक एंड स्टेटस। हायरार्ची होता है कि पिता पुरखी। जो कास्ट उस टाइम के किसी एक बंदे के बाप की थी तो वो ही उसका बेटा, फिर उसका नेक्स्ट बेटा। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मीन्स हायरार्चिकल ऑर्डर चलता था। देयर वर नो एनी कंडीशन टू चेंज देयर कास्ट। उसके अंदर कंडीशन पैदा नहीं होती कि वो अपनी जात को या अपनी कास्ट को चेंज करे, क्योंकि ये जो सिस्टम था हायरार्चिकली चलता था। कास्ट इज आल्सो इन्वॉल्व सब डिवीजन विद इन देमसेल्व्स। कि जो कास्ट था वो डिवीज विद देमसेल्फ, उसी के अंडर रह के वो अपने काम करते हैं। कास्ट वेयर ट्रेडिशनली लिंक टू ऑक्यूपेशंस। उस टाइम जो बंदा कोई ऑक्यूपेशन करता तो वो अपनी कास्ट से रिलेटेड ही ऑक्यूपेशन को अडॉप्ट करता, अदरवाइज वो कोई ऑक्यूपेशन को चूज़ नहीं करता। दैट टाइम शूद्रा फेमस ऑक्यूपेशन, जो उस टाइम के शूद्र लोग थे उनका फेमस ऑक्यूपेशन क्या था, शूज़ मेकर। जो शूज़ मेकर था उनका ऑक्यूपेशन था विद शूज़ मेकर ही विल बी नो अबाउट द कास्ट। कि उनकी कास्ट, उनके ऑक्यूपेशन से ही उनकी कास्ट के बारे में पता चलता है कि किस कास्ट का है, शूद्र है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य है। जो ब्राह्मण थे उनका उस टाइम क्या था काम, रिलीजन सेरेमनीज के लोगों की रिलीजन जो सेरेमनी उनको पूरा करना। तो वो अपनी कास्ट के अकॉर्डिंग ही लोगों के अंदर अपनी एक अलग जो सिंबल रखते हैं, अपनी अलग पहचान बनाते हैं। कास्ट वर ट्रेडिशनली लिंक टू ऑक्यूपेशन। दैट्स क्लियर। थ्योरेटिकली इंटरप्रिटेशन ऑफ कास्ट। कास्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेट्स ऑफ प्रिंसिपल। कि हमारी जो कास्ट है दो सेट के प्रिंसिपल से बनती थी, डिफरेंस एंड सेपरेटेशन। उस टाइम क्या था कि जो हमारी कास्ट थी
नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, होलसेम एंड हायरार्ची। जो हायरार्ची होता है इट इज ए टर्म नोन एज ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मीन्स फर्स्ट फादर, फिर आफ्टर द फादर हर हिज सन आफ्टर हिज सन, मीन्स के पिता के बाद उसका बेटा, फिर उसके बेटे के बाद उसका बेटा, इज नोन एज ए हायरार्ची। इट इज हायरार्चिकल और होलसेम ऑर्डर के कास्ट के अंदर जो है बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्शन बिटवीन प्योरिटी एंड पॉल्यूशन, के ये प्योरिटी के अंदर ही काम करता था। प्योरिटी मीन्स कि जो उसके फादर ने कोई भी ऑक्यूपेशन या कोई भी रिलीजन को अडॉप्ट किया है, आफ्टर दैट हिज सन विल बी अडॉप्टेड दैट टाइप ऑफ रीजन और टेरिटरी या ऑक्यूपेशन, वो अपन वही ऑक्यूपेशन अडॉप्ट करेगा। इन द कास्ट सिस्टम, फिर उसके अंदर कास्ट सिस्टम के अंदर क्या आता है, एंडोगोमी। एंडोगोमी होता है व्हेन वन पर्सन मैरी विद द ट्राइब कम्युनिटी और ट्राइब रूल्स एंड रेगुलेशन, कि जब कोई एक बंदा किसी दूसरे के साथ मैरिज करता है विद इन द रूल और रेगुलेशन ऑन ट्राइब्स कम्युनिटी, के जो उस टाइम की ट्राइब्स या कम्युनिटी के रूल जो रेगुलेशन है उसके अंदर रह के वो अपने मैरिज सेरेमनी को जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को अडॉप्ट करते हैं, दिस इज नोन एज एंडोगोमी। एक्सोगोमी, दिस टर्म रेफर टू द when one individual marry with outside the tribes ritual and ceremonies, कि जब कोई बंदा अपने ट्राइब्स के या अपने ट्रेडिशन के अडॉप्ट ना करके उसके बाहर जाके अपनी मैरिज की जो रूल एंड रेगुलेशन जो उसकी सेरेमनीज के उसको अडॉप्ट करते हैं, इट्स नोन एज एक्सोगोमी। एंडोगोमी इज द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग विद इन द कास्ट। एक्सोगोमी इज द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग आउटसाइड द क्लैन और गोत्रा, मीन्स कि जब कोई बंदा किसी दूसरे के साथ मैरिज करने के समय उसका क्लैन और गोत्रा को ना देखे, इट्स नोन एज एक्सोगोमी। ए प्रोप्राइटरी कास्ट ग्रुप, ये कास्ट ग्रुप कौन सा होता है, विच हैव ए कमांड ऑन ऑल टाइप ऑफ सोर्सेस, के ये वो होती है कास्ट जिसे हम कहते हैं अपर कास्ट, कि जिसके पास सारे लोगों को काम करवाने के लिए एक अथॉरिटी होती है। is a group that owns most of the resources and can command labor to work for them, के लेबर को कमांड करता है काम करने के लिए। Understood my dear students? Next, caste panchayats are panchayats which are controlled by the dominant group and represent their interests। उस टाइम क्या था कि हमारी कास्ट के अंदर कुछ डोमिनेंट कास्ट भी थी, जो डोमिनेंट कास्ट मीन्स ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य से, ये डोमिनेंट कास्ट के रूप के अंदर काम करती थी, जो उस टाइम ये क्या करती, दूसरी जो सब कास्ट थी उसके ऊपर अपनी अथॉरिटी और पावर रखती थी। किसके अंदर, उनके जो इंटरेस्ट्स हैं क्या हैं, उनकी नीड्स क्या हैं, उनकी डिमांड्स क्या हैं, उनको फुलफिल करने के लिए उनको उनकी सारी करने मतलब उनको सारी की सारी डिमांड को फुलफिल करने के लिए जो एफर्ट्स करते हैं, इट्स नोन एज ए कास्ट पंचायत। प्राइमरी डिसीजन मेकिंग इज कंट्रोल्ड बाय द अपर कास्ट, रिचर लैंडलॉर्ड्स एंड लैंडेड पीसेंट्स, कि ये सारे जो उस टाइम की सेरेमनीज थी, ये जो उस टाइम के लैंड लॉर्ड थे, अपर कास्ट के लोग थे, ये कंट्रोल करते थे। अंडरस्टूड? आई होप माय डियर फ्रेंड दिस चैप्टर you have understood with the easily concept. Next we will discuss more concept related to this chapter. Today this chapter has been closed. Next we will meet again. Thank you.